ओम शांति। आज बाबार 4/11/2020 मुरली। आजकेर मुरलिर मुख्य पॉइंट होच्छे जे बाबा आज बोलছেন बच्चे तुम्हें सब समय बाबार यादेर फाँसिते थाकते हबे। तो ये फाँसिते चढ़े जाओ ताहले तुम्हार खूब कल्याण हबे। सब समय तुम्हें जोगेर मध्येई थाकते हबे। तारपरे आज के बाबा बोलছেন जे कोन एकटा बल द्वारा तुम्हार क्रिमिनल दृष्टि नष्ट हो जाबे। तो बाबा बोलছেন যখন ज्ञानेर तीसरा नेत्र खुले जाबे, ज्ञानेर बल যখন তোমরা পেয়ে যাবে তখন ক্রিমিনাল ভাবটা কেটে যাবে। তো বারবার ভাবো যে আমরা আত্মা আত্মা ভাই ভাই আর আমরা ব্রহ্মা বাবার সন্তান রূপে আমরা ভাই বোন আছি। তো ভাই বোনদের কখনো ক্রিমিনাল দৃষ্টি হতেই পারে না। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে ভারতবাসীরা আমাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, এটাও ড্রামাতে নোঁধ আছে। তো যতরা আমাকে সর্বব্যাপী বলছে ততই তারা নিচে নামছে। তারপরে বাবা বললেন যে কৃষ্ণ গীতা জ্ঞান দিতে পারে না। কৃষ্ণ তো একটা আত্মা, কিন্তু বাবা তো হচ্ছেন পরমাত্মা, পরম শক্তি। তো বাবাই হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর, যিনি এখন ব্রহ্মা বাবার শরীরে এসে আমাদেরকে গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবা আমাদেরকে আসল রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তারপরে বাবা বললেন যে কখনো তোমরা ক্রিমিনাল ভাব রাখো না, বারবার চেক করো যে কারো প্রতি আমার ক্রিমিনাল দৃষ্টি যাচ্ছে না। তো অর্থাৎ যদি তোমরা কাম বিকারের চোট খাও তাহলে অনেক কড়া শাস্তি পেতে হবে, একদম হাড্ডি গুড্ডি পুরো ভেঙে যাবে। তারপরে বাবা বললেন যে বাবার উপরে কোনো ব্যাপারে তোমরা সংশয় রাখো না। কোনো সময় বাবাকে বড় লোকদের খাতির করতে হয়। তো অনেক বাচ্চারা ভাবে যে বাবা তো বড়দেরকে খুব সম্মান দিচ্ছেন, কিন্তু বলছে যে কার নারী কেমন সেটা আমি বুঝি। তো টিচার যেমন স্টুডেন্টকে বোঝে সেরকম আমি এক একটা বাচ্চার নবজ নারী আমি বুঝি, সে অনুসারে আমাকে পালনা দিতে হয়। তো বাবার উপরে কোনো ব্যাপারে তোমরা সংশয় রাখো না। আর সবসময় এটা খুশিতে থাকো যে বাহ আমার ড্রামাতে কত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, বাহ আমার পাঠ যে স্বয়ং ভগবান এসে আমাকে পড়াচ্ছেন। তো এভাবে বাবা আজকে আবার খুব নেশার পয়েন্ট বলছেন যে তোমাদের তকদির, তোমাদের ভাগ্য কত শ্রেষ্ঠ যে তোমরা ভাবতেও পারোনি যে ভগবান কোনোদিন তোমাদেরকে এসে পড়াবে। তো এখন সঙ্গম যুগে স্বয়ং ভগবান তোমাদেরকে এত উঁচু জ্ঞান দিচ্ছেন। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बाबा बोलছেন মিঠে बच्चे তোমাকে সবসময় यादेर फांसीते चढ़े থাকতে হবে। याद দ্বারাই आत्मा सच्चा सोना হবে। আজকের প্রশ্ন, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? বলছেন কি একটা শক্তি ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে একদম পরিবর্তন করে দিচ্ছে। তো উত্তরে বাবা বলছেন ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आँखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। বাবা বলছেন যখন জ্ঞানের বল যখন আত্মার মধ্যে চলে আসে তখন ক্রিমিনাল ভাব চলে যায়। বাবার শ্রীমত হচ্ছে বাচ্চে তোমরা সবসময় নিজেকে ভাই ভাই ভাবো বা ভাই বোন ভাবো। তো তোমাদের কখনো ক্রিমিনাল দৃষ্টি হবে না। তোমরা সবসময় বাবার ইয়াদের মস্তিতে থাকো, ভাবো বাহ আমার ভাগ্য, ভগবান আমাকে পড়াচ্ছেন। তো এরকম বিচার সাগর মন্থন করো তো তোমার একদম রুহানি মস্তি সবসময় তোমাদের ভিতরে চড়ে থাকবে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं,
बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है। बाबा बोलছেন যে একমাত্র বাবার যে আত্মা তিনি হচ্ছেন পারফেক্ট, ওনার মধ্যে কোনো রকম मोर्चे लगा नहीं। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है, बिल्कुल नहीं, बाबार मध्य एकटो विकारेर कोनो मोर्चे लगा नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी, इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, यह तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है, तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाबा बोलছেন যত তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে তত তোমাদের মলিনতা দূর হবে। ভক্তি মার্গের কথা তোমরা জন্ম জন্মান্তর শুনে এসছো, আর এখানে তো জ্ঞান বাবা দিচ্ছে তোমাদেরকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন জ্ঞানের এম অবজেক্ট আছে যে আমরাই লক্ষ্মী নারায়ণ হতে যাচ্ছি। ईश्वर सर्वव्यापी कह मेरी ग्लानि करते रहते हैं। बाबा बाहरे जे सत्संग सेखाने तो कोनो एम ऑब्जेक्ट नहीं, बरंच सेखाने ईश्वर के सर्वव्यापी बोले आरो बाबार निंदा करा है। तो ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है, इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानुवाच है ना, बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाबा बोलছেন আমি কল্পে কল্পে এই সঙ্গম যুগে এসে তোমাদেরকে আমি এই জ্ঞান দিচ্ছি। यह पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। सत्ययुगे
आत्मार शरीरटाও शतप्रधान হবে। तो जैसी आत्मा वैसा जेवर, सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। বলছে যখন সোনার মধ্যে तांबा বা রূপোর যখন खाद पड़े তখন তার মূল্যটা কমে যায়। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद में रहते हैं। বলছে চার্ট লেখো যে সারা দিনে আমি কত সময় বাবাকে याद করছি। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। বলছে যোগ করতে করতে তোমার अंतिम मति श्रेष्ठ गति हो जावे। वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। तो यह भी तुम जानते हो कि यह बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी जानते नहीं, न जानेंगे, इसके लिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। বলছেন তোমরা এখন জানছো যে দুনিয়া কত নোংরা হয়ে গেছে, এখানে ঈশ্বরকে তো কেউ জানেই না, না জানার জন্যেই বাবা বলছেন সকলের বিনাশ কালে विपरीत बुद्धि হয়ে गए। उन्हों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। বলছেন জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করার জন্যে খুব একান্তবাসী হতে হবে। तो मधुबने तो खूब भालो एकांत पावा जाए। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा यह परम आत्मा। বলছে কৃষ্ণ এত উঁচু পড়াই পড়াতে পারে না, কৃষ্ণ তো একটা আত্মা, আর বাবা তো शिव बाबा परमात्मा। तो पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और रहेगा ना। कहते हैं यह तो दादा लेखराज है, यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किसमें तो आएंगे ना। বলছেন যে আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। तो बाप किसमें तो आएंगे ना, शास्त्रों में यह बातें है नहीं। तो बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में यह ज्ञान होगा नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। तो बाप संगम पर आकर यह नॉलेज देते हैं। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে তো এই জ্ঞান থাকবেই না, সেখানে তো প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়। তো বাবা সঙ্গম যুগে এসে তোমাকে এই জ্ঞানটা দিচ্ছেন। फिर तुम पद पा लेते हो। यह टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। বলছে এই সময়টাই হচ্ছে তোমাকে বাবা থেকে বেহদের বর্ষা নিয়ে নিতে হবে।
তাই তুমি কোনো রকম গফলত করো না। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा बोलছেন তোমাকে डबल सिरताज হওয়ার জন্য पुरुषार्थ করতে হবে। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। बाबा बोलছেন যে লৌকিক পিতার ধারটাও বাচ্চাদেরকে শোধ করতে হবে। लॉफुल चलना है, यहाँ तो सब हैं बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। अच्छे ब्रह्मा बाबार सन्तान तुम्हारा बीके तो तुम्हादेर कखनो भाई बोनदेर मध्य क्रिमिनल दृष्टि जेनो ना थाके। तो यह बाप युक्ति बताते हैं, तुम सब बाबा बाबा करते रहते हो तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना, आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में तो भाई बहन ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। বলছেন যে এক পিতার সন্তান ভাই বোন আমরা কি করে বিকারে যেতে পারি। भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। तो बाप ने समझाया है यह आँखें बहुत धोखा देने वाली है। आँखें ही अच्छी चीज़ देखती है तो दिल होती है। अगर आँखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। বলছে এই চোখটাই সবথেকে বেশি ধোকা দেয়। তো কোনো ভালো জিনিস দেখলে মনে হবে যে এই জিনিসটা নিয়ে নিই। तो इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है। अब बाप कहते हैं यह सारी कट निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। अच्छा जो तो तुम्हें बाबा के स्मरण करबे तो तुम्हार बाबार प्रति भालोबासा जुटबे। पढ़ाई से नहीं याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन युग जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। বলছে सर्वव्यापी ज्ञान द्वारा एकदम मानुष नीचे नेमे गए। तो अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। বলছে যে যতটা পুরুষার্থ করেছে কল্প পূর্বে সে ততটাই করবে, তুমি সাক্ষী হয়ে সব দেখো। तो यह प्रदर्शनी आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन।
वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। বলছে তোমরা নিরাকার आत्मा আমার সঙ্গে परमधाम তোমরা ছিলে। यह ड्रामा कैसा है, यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। বলছেন এখন সবাই একদম विपरीत बुद्धि হয়ে আছে। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। यह जैसे फांसी पर चढ़ना है। বলছে একদম পুরো তোমাকে নষ্ট মহা হতে হবে, খুবই পরিশ্রম এটা। তো বাবা বলছে এটা যেমন ফাঁসিতে মানুষ উঠে যায় না, এরকম বাবার यादेर फांसीते তোমাকে উঠে যেতে হবে। तो बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। तो बाप की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। বলছে যে তোমরা যদি কাউকে বলো যে শিব বাবা আমাকে পড়াচ্ছে তো মানুষ শুনে হাসবে, কেন এতদিন তারা কৃষ্ণকেই ভগবান মেনে এসেছে। तो तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस। नए मकान में रहते हैं। বলছে সত্যযুগে কৃষ্ণ একদম নতুন মহলে থাকবে, সে ভারতবর্ষের একদম প্রথম राजकुमार। तो बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे ना। বলছে সবাই তো একদম প্রথম নম্বরে আসবে না, नंबरवार माला बनेगी ना। तो बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। তোমরা এখানে কি করতে এসছো, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছো। कथा भी सत्य नारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। বলছে সত্য নারায়ণের কথা বলা হয়, সত্য লক্ষ্মীর কথা কখনো বলা হয় না। तो प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है, फिर भी प्यार कृष्ण से है। বলছেন যে বোনেদের মায়েদের हमजिन्स तो राधा, किंतु कृष्णेर संगे बेशी सकलेर भालोबासा। तो उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं ना। বলছে বাচ্চারা সবসময় সকলের কাছে প্রিয় হয়। तो बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे। বলছে এখন দুনিয়াতে ছেলে আসলে সবার খুব মনে খুশি, আর মেয়ে যদি জন্ম নেয় তাহলে সবাই গুটখা খাবে। कई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी है ना आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हैं। तो अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। बाबा आबार बोलছেন बच्चे এরকম गुणवान हो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। अहो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं।
বলছে তোমাদের কত খুশি থাকা দরকার যে বাবা এখন আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। यही बैठ चिंतन करो भगवान हमको पढ़ाते हैं वाह तकदीर वाह। तो ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। বলছে এত বাবার এই নেশাতে তুমি একদম যেমন মস্তানা হয়ে যাও যে কে পড়াচ্ছে আমাকে, কত উঁচু জ্ঞান আমি পাচ্ছি। তো वाह तकदीर वाह बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं, पवित्रता धारण करनी है, हम यह बनते हैं दैवी गुण धारण करते हैं। বলছে যে তোমরা পবিত্রতাকে ধারণ করো এবং অনুভব করো যে আমরা এটা হচ্ছি, এরকম দেবী গুণ ধারণ করে আমরা দেবী দেবতা হতে যাচ্ছি। तो यह भी मन मना भाव हुआ ना, সেটাও मन मना भाव হবে। बाबा हमको यह बनाते हैं, यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। बाबा বলছেন যে আমি তোমাদেরকে এই রায় দিচ্ছি যে তোমরা একান্তে বসো আর নিজের সঙ্গে কথা বলো। यह बैच तो छाती से लगा दो। তো বাবা বাচ্চাদেরকে শ্রীমত দিচ্ছেন যে তোমরা রোজ দিন চার্ট লেখো এবং একান্তে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলো। বাবা যে তোমাকে ব্যাচ দিয়েছে এটাকে একদম নিজের দিলে লাগিয়ে নাও যে বাবার শ্রীমত অনুসারেই আমরা এটা হচ্ছি। इसको देखकर उनको प्यार करते रहो, মানে বাবার ব্যাচ দেখে দেখে শিব বাবাকে ভালোবাসতে হবে। बाबा की याद से हम यह बनते हैं, बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। বাবাকে বলো যে বাবা আমরা তো আগে জানতাম না যে তুমি এসে আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাবে। नौधा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। বলছে যারা অনন্য ভক্তি করে একদম নধা ভক্তি তারা ভগবানের দর্শন পাওয়ার জন্য নিজের গলা কাটতে শুরু করে দেয় বা নিজের প্রাণ ত্যাগ করতে চলে যায়, সেই সময় তারা দর্শন পায়। तो ऐसे ऐसे की ही भक्त माला बनी हुई है। তো বাবা বলছে এরকমই कठोर भक्त तादेर जन्ने बोला है भक्तमाला। तो भक्तों का भी मान है ना, वैसे भक्तोदेरो मान आछे। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं, तो अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। वैसे এখন তোমাদের বাবার সঙ্গে বেহদের প্রীত আছে। तो एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे, एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। এবার আমরা বাবার শ্রীমতে পুরো চলবো। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है, हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे। বাবা বলছে যদি তোমরা কাম বিকার থেকে হেরে যাও তারপরে পশ্চাতাপ যদি করো তো কোনো লাভ নেই। एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, বলছে একদম হাড়গোড় ভেঙে যাচ্ছে। बहुत कड़ी सजा मिल जाती है, বলছে খুবই কঠোর শাস্তি পাবে। कट उतरने के बदले और ही जोर से चढ़ जाती है, योग लगेगा ही नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है, बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं, बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। বলছেন অনেকেরা খুব বাবার সঙ্গে গপড়া করে যে বাবা আমি তো 24 ঘন্টাই তোমার ইয়াদে থাকি। তো বাবা বলছে যে সবসময় কেউ বাবার ইয়াদে থাকতে পারে না, এগুলো হচ্ছে সব গল্প। तो बाबा जानते हैं रह नहीं सकते, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं।
स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। বলছে মায়ার খুব তুফান আসবে, রাতে বেলা স্বপ্নে তোমার উল্টো পাল্টা স্বপ্ন আসবে। तो ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे, बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए, हम बहुत सर्विस करते हैं। বলছে তোমাকে শুধু সেবা করেই খুশি হওয়া উচিত না, তোমাকে খুব যোগ করতে হবে এবং যোগের মধ্যেই মায়া নানান রকম ঝড় আনবে। तो गुप्त सर्विस अपनी करते रहो, इनको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। বলছে তোমাদের এই আন্তরিক খুশি থাকা দরকার যে আমি এখন প্রিন্স হব। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। এটা ব্রহ্মা বাবা বলছেন যে তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করতে পারো তত আমি নেই। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। বলছে আমার তো অনেক চিন্তন করতে হয়। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। বলছে তোমাদের কখনো হিংসা হওয়া উচিত না যে বাবা বড় বড় লোকদের কেন এত খাতিরি করে। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। বলছে বাবা প্রত্যেক বাচ্চার নাড়ি দেখে তার কল্যাণ অর্থে ताकि সেভাবে পালনা দেন। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। বলছে टीचर জানে যে প্রত্যেক স্টুডেন্টকে কিভাবে চালাতে হবে। तो बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। তো বাবা বলছে তোমাদেরকে এই ব্যাপারে কোনো সংশয় আনা উচিত নয়। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। বলছেন একান্তে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলো। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। आत्मार उपरे जा मोर्चे पड़े आछे सेटाके बाबार यादेर यात्राय बाबा बोलछे ओटाके नामाते हबे। आज 2 नम्बर पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। कोनो व्यापारे बाबार प्रति संशय बुद्धि होना, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। বলছে আন্তরিক খুশিতে থাকো এবং নিজে গুপ্ত সার্ভিস করো। আজকের বরদান, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। বলছে সেবা করো কিন্তু উপরাম স্থিতিতে থাকো, योग युक्त एवं युक्ति युक्त হও। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। বলছেন যে যোগযুক্ত যুক্তিযুক্ত সেবাধারী হবে তারা সেবা করার মধ্যেও তারা সবসময় উপরাম থাকবে। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। বলছে এরকম নয় যে সেবা বেশি আছে বলে আমরা অশরীরী অবস্থার অভ্যাস করতে পারছি না। लेकिन याद रहे
कि मेरी सेवा नहीं, বাবুজি সবসময় মনে রাখো যে আমার সেবা নয়, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। বাবা এই সেবা দিয়েছে তাহলে আমরা নির্বন্ধন থাকবো। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। বলছে প্র্যাকটিস করো যে আমি ট্রাস্টি, আমি বন্ধন মুক্ত। अंत अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। বাবা বলছেন লাস্ট টাইমে একদম कर्मातीत अवस्थार अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विथ ऑनर बन सकेंगे। तो अच्छे माझे माझे संकल्पे ट्रैफिक कंट्रोल करो, ताले अंतिम समय तुम्हारा पास विथ ऑनर होते पारबे। आजकेर स्लोगन होच्छे शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छे शुभ भावना कारण के निवारणे परिवर्तन करे देय। ओम शांति।